Now, basically why we discuss pin description, हम लोग को डिस्कस क्यों करना है, सबसे पहले तो ये, ठीक है, तो बता सकते हैं कि why we discuss pin description? Yes, sir. I think, sir, it is external part of processor. External part of the processor means the pins are external to the particular. Yes, sir. I am talking about this. Yes, sir. My question is my answer is. But इसको आप external part नहीं बोल सकते हैं. It is used to, यानी various pin allocated on the particular processor is used to make the proper communication with other part of the computer. The proper communication should be established through this pin, because each pin reserved for the specific designed for the specific region. हर pin का एक certain responsibility है and उस responsibility को वो pin पूरा करता है. ठीक है ना? Sorry, sir, I could not able to understand due to unwanted sound. I just mute all. And yes, sir. I don't want to mute all because whenever you are raising hand, then after I have to give permission. But still noise. Now, basically, when we discuss the pin of any microprocessor as like 8086, then first of all we discuss what are the various operating mode of that microprocessor. Operating mode का मतलब है कि in which manner the control signals are generated by the particular microprocessor, because you already know that control signals are generated by the particular memory or input output, यानी जो भी control signal होगा CPU का वो memory और input output segment के लिए होता है, लेकिन there are some control which is generated externally. तो most probably आपका control जो है CPU generate करता है, and at the moment जब CPU generate करता है कोई control signals, तो वो buses का इस्तेमाल करता है to move the control signal from one location to another location. But whenever some external control is needed, तो external control signals अगर generate कर रहा है कोई external device के through generate हो रहा है, then that particular mode of accession is different from the particular control signal generated through the CPU. तो CPU अगर कोई control signal generate कर रहा है तो वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए होगा कि वो मेमोरी को किसी तरह का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, ये इनपुट आउटपुट, जिसको हम लोग वन न्यूमन आर्किटेक्चर मॉडल में भी देखे थे कि व्हेनेवर देयर इज ए 4 कंपोनेंट कांसेप्ट, CPU, memory, input and output, then the control signals are generated for memory as well as input output by the CPU. But at the same time जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा ट्रांसफर स्कीम, तो वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो डेटा है वो डायरेक्ट भी ट्रांसफर होता है इन बिटवीन द पेरिफेरल्स एंड द मेमोरी एंड पेरिफेरल्स. तो उस समय में आपका डीएमए कंट्रोलर इज द कंट्रोलर ऑफ दैट टाइप ऑफ मूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो है देयर आर 2 ऑपरेटिंग मोड, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. मिनिमम ऑपरेटिंग मोड बेसिकली आपका जब काम करेगा मिनिमम ऑपरेटिंग मोड, देन आपका कंट्रोल सिग्नल्स जो है मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए 8086 जनरेट करेगा और उस कंट्रोल सिग्नल्स के बेसिस पर आपका मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होगा सिस्टम में. मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड यानी व्हेनेवर सम एक्सटर्नल कंट्रोल is generated, yani whenever the control signals are generated externally, then
the particular mode of operation is known as maximum operating mode. Now अब ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए हमारा एक ही पिन है। चूंकि आपको पता है कि जो पिन है वो दो तरह का इनपुट वैल्यू ले सकता है, क्योंकि बाइनरी आपका जो है इंस्ट्रक्शंस को ये लेता है। तो आपका जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस है आइदर 0 या 1 हो सकता है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी मिनिमम इज रिप्रेजेंटेड बाय mn एंड मैक्सिमम इज रिप्रेजेंटेड बाय mx। नाउ सी, यहाँ पर कुछ पिन आपका जो है वो कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जब आपका उस पिन से 0 इनपुट हो रहा होगा तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ है वो ऑन होगा, और जब 1 आपका इनपुट होगा तो वो ऑफ होगा। लाइक अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड देखें तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में अगर mn/mx बार लिया गया है तो बेसिकली कुछ नेमिंग कन्वेंशन को कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिया गया है। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट, वो समझिए। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो लिया गया है वो एक्टिव हाई होगा। अब एक्टिव हाई का क्या मतलब है और एक्टिव लो का क्या मतलब है वो भी समझिए। एक्टिव हाई का मतलब है कि आपका वो एक्टिव कब होगा, जब उसमें इनपुट 1 किया जाए। एक्टिव लो कब होगा, जब उसमें 0 इनपुट हो और वो एक्टिव हो। तो इसके बेसिस पर एक्टिव हाई और एक्टिव लो टर्म यूज किया जाएगा इसमें इन बिटवीन। अब अगर हम पूछा जाए mn mx बार, mn पर आपका कोई बार नहीं है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं है, mx आप पर आपका बार है, तो mn स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड and mx stands for maximum operating mode. Then which one is active high and which one is active low? Anyone raise the hand? Which one is active high? हाँ बताइए। Sir, MX is Yes, sir. MX is active high, sir. Yes, active high. Active Yes, sir. low. सर Sir, फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट नहीं समझे सर हम। अगर ऐसा लिखा गया है कि आपका पिन जो है वो उस पिन का नाम दिया गया mn mx बार, तो अब एक्टिव हाई और लो का मतलब समझिए। एक्टिव हाई कब होगा, जब कोई पिन आपका एक्टिव हो रहा है हाई इनपुट लेने पर, और एक्टिव लो कब होगा, जब आपका कोई पिन एक्टिव हो रहा है लो इनपुट लेने पर। तो अगर आप mx बार को देखेंगे तो mx बार अगर हमारा इस पिन से तो वैल्यू या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा एट ए टाइम, ठीक है ना। तो अगर हमारा इस पिन से इनपुट, यानी कि 0 जाने का मतलब है कि लो को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्टिव mx आपका जो है ये एक्टिव होगा जब 0 इनपुट होगा या हाई इनपुट होगा। तो mx, क्योंकि mx का नाम है mx बार, तो यहाँ देखो अब ये लो अगर जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जा रहा है 1 का मतलब होता है हाई होना, एक्टिव होना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हाई यानी कि 1 इसमें इनपुट हो रहा है, तो ये हाई 0 में बदल रहा है ना। Yes, sir. तो ये इसका ऑन स्टेज बता रहा है और ये इसका ऑफ स्टेज बता रहा है। तो एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव लो होने पर हो रहा है या हाई होने पर? ऑन होगा तभी तो एक्टिव होगा, ऑन या लो होने पर हो रहा है। तो mx इज एक्टिव लो, mx बार नहीं। अगर mx को आप मिनिमम मैक्सिमम के लिए लिए हैं, mn को मिनिमम के लिए लिए हैं, तो लो। अब यहां पर सेम चीज देखिए, ये तो हुआ आपका mx के लिए, y mx इज एक्टिव, ये mx आपका एक्टिव लो है। क्यों है, ये रीजन समझ में आ रहा है कि लो इनपुट विल जनरेट हाई
फॉर mx, मैक्सिमम को वो ऑन कर देगा, 0 इनपुट करने पर मैक्सिमम ऑन हो जाएगा। और व्हाट अबाउट द मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, सेम इनपुट लो इक्वल टू 0 जब mn में आएगा तो mn में डायरेक्टली ये 0 असाइन होगा mn के लिए, मिनिमम के लिए। तो 0 इज फॉर व्हाट, ऑफ। और mn में यहाँ क्योंकि mn नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, जब हाई आएगा तो ये ऑन होगा। ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन। इसका मतलब है कि आपका जो है mn यानी मिनिमम ऑपरेटिंग में mn जो पिन है वो एक्टिव हाई है या लो है, क्यों एक्टिव हाई है कि जब हाई इनपुट इसको दिया जाता है तो ये ऑन है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड मेरा ऑन है। तो बाय डिफॉल्ट, अब ये हाई और लो का कॉन्सेप्ट समझिए। हाई और लो का कॉन्सेप्ट है जब पावर दिया जाए, पावर यहां पर दिया जाता है ±5 वोल्ट पावर डीसी। तो जब पावर सप्लाई होगा तो इस पिन का वैल्यू क्या होगा, mn इज इक्वल टू 1। और पावर जब आपका जो है पावर को ब्रेक कर दिया जाए, पावर हटा दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, जब पावर आपका 0 हो जाए तब उस केस में mn का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। व्हेन पावर डिक्रीजेस देन mn बिकम 0। यानी mn बिकम 0 का मतलब कि जब पावर है तो ये एक्टिव हाई है, पावर है का मतलब कि ऑन है, इनपुट 1 हो रहा है तो ये एक्टिव हाई हो गया। और जैसे ही पावर को डिक्रीज कर दिया गया, 5 वोल्ट डीसी को कम कर दिया गया, 0 तक कर दिया गया, तो उस केस में क्या, जब पावर सप्लाई नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, mn में यानी कि जो हाई इनपुट था वो लो इनपुट में बदल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिजेबल हो गया, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड डिसेबल। and at the moment when the power is decreases and minimum become यानी कि इनपुट वैल्यू आपका 0 होगा तो मिनिमम डिजेबल हुआ, तो ये 0 जो है ये mx को आपका क्या कर देगा, ये 0 जो है mx को इनेबल्ड कर देगा। अर्लियर mn जब 1 था तो आपका mx बार क्या हो जा रहा था, mx बार मीन्स 0 हो रहा था तो वो डिजेबल्ड हो रहा था। इस केस में जब mn इक्वल टू 1 था तो mx बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का बार 0, दैट इज द डिजेबल्ड मोड। तो जब मिनिमम ऑपरेटिंग मोड ऑन रहता है तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड डिजेबल्ड हो जाता है। और जैसे ही पावर कम किया गया तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड आपका डिजेबल्ड हो गया। तो जैसे ही ये डिजेबल्ड हुआ तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड, चूंकि ये मल्टीप्लेक्स्ड है दोनों पिन mn mx बार कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, नॉन कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0 इनपुट बिकम 1। एंड इस केस में आपका क्या हो गया, जब mn इक्वल टू 0 डिजेबल्ड है तो mx आपका इनेबल्ड हो गया। यहाँ पर आपका mn इक्वल टू 1 है तो आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल्ड है। बोलिए सर, ये वाला नहीं समझ में आया सर, दोनों में सर- एक बार लिए फिर ऑन ऑफ कैसे हो गया सर, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन करो। सर mn और mx कब एक्टिव होगा सर? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। ये दो ऑपरेटिंग मोड आपका जो है, ये ऑपरेटिंग 8086 जो आपका है ये दो तरह से ऑपरेट होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ, कब एक्टिव होगा, अभी बताया ना कि एक ही पिन से आप दो इनपुट लेते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब हुआ, अब यहाँ 1 का मतलब पहले समझिए, क्योंकि आपका जो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड है, क्योंकि जब दो ऑपरेटिंग मोड होगा तो किसी एक को डिफॉल्ट बनाया जाएगा ना, तो कोई एक डिफॉल्ट कौन है, तो इसमें मिनिमम ऑपरेटिंग मोड आपका डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट के लिए ये क्या है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड एक्टिव हाई है। इसका मतलब एक्टिव हाई कैसे हो रहा है, जब पावर सप्लाई करेंगे तो ये एक्टिव हाई होगा। एक्टिव हाई होने का मतलब है इस पिन से इनपुट क्या जाएगा, 1। तो जब इस पिन से इनपुट 1 जाएगा तो चूंकि mn आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन है, नेमिंग कन्वेंशन जो mn के लिए मिनिमम के लिए है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट है। नॉन कॉम्प्लीमेंट है दैट मीन्स जैसे ही 1 गया तो mn में 1 असाइन हुआ, लेकिन mx आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, तो चूंकि इनपुट तो जो वैल्यू है वो एक ही इनपुट जाएगा, तो ये 1 जो है इस mx के लिए क्या हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। दैट मीन्स
जब ये इनेबल्ड होगा तो ये डिजेबल्ड होगा, जब ये डिजेबल्ड होगा तो ये इनेबल्ड होगा, बिकॉज दोनों एक, ये आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। इनपुट वैल्यू हमेशा एक ही होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। चूंकि पावर ऑन से रिलेटेड है ये 0 1, तो पावर जब सप्लाई करते हैं तो हमारा इनपुट पिन, उस पिन का वैल्यू 1 होता है। तो 1 का मतलब है कि जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो सेट हो जाएगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि ये आपको सेट कब होगा, जब mn पिन आपका जो है सेट होगा, रीसेट होगा, तो ये आपका सेट हो जाएगा। जी ओके, ये बात ही हम लोग को समझना है पहले। तो अगर पावर शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mn 0, बोलिए। यस सर, यहाँ बता बोलिए। तो अब 1 के जगह अगर इस पिन से 0 यानी पावर कम करके 0 हो गया, 0 हो गया, तो mx बार क्या हो जाएगा, mx बार 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड ऑन होगा तो मैक्सिमम ऑफ रहेगा, जब मिनिमम ऑफ होगा तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड ऑन रहेगा। नाउ बोलिए। हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? बोलिए। Yes, sir. Sir, I think, sir, minimum is a start, then maximum is off. When maximum is on, then minimum is off. हाँ, Clear, sir? Okay, sir. क्लियर। Okay, sir. एक्सक्यूज मी बिकॉज सर, देखिए आपका जो पिन है वो एक ही है, उसी पिन से वैल्यू 0 है जाएगा या 1 जाएगा, तो एट ए टाइम या तो 1 जाएगा या 0 जाएगा। But sir, maximum represent that increases and a minimum represents an lower case. Just see in the diagram, the next जो diagram है, just see here. Here you are seeing the VCC, there is a VCC, ठीक है ना, VCC is the voltage supplier pin। तो एक और चीज है, वोल्टेज सप्लायर पिन जो है यहाँ प्लस माइनस 5 वोल्ट डीसी करंट यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो whenever the voltage submitted, यानी कि whenever power supply is on, then this mn mx bar, pin number 33, just see, pin number 33 represent mn/mx bar। तो जहां भी जिस पिन में कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन यूज हो रहा है नेमिंग कन्वेंशन, तो वो सेम पिन को 2 डिफरेंट मैनर में ट्रीट किया जा रहा है। अब देखो ये इनपुट पिन है, आपका जो पिन एरो है ये आइदर इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, जस्ट, या इनवर्ड आउटवर्ड दोनों होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो पिन है वो किस तरह के कम्युनिकेशन बस का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो पिन आपका एड्रेस डेटा बस यूज कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल बस यूज कर रहा है, या अदर कोई भी, तो वो आपका डुअल मोड में, यानी कि डेटा बस और एड्रेस बस, आगे देखेंगे इसमें जो मल्टीप्लेक्स्ड पिन है। तो अभी पिन ऑपरेटिंग मोड के लिए आपको पिन नंबर 33 देखना है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स 8086 है। तो इस पिन के थ्रू आपका इनपुट 1 होगा। कब होगा, जब पावर सप्लाई ऑन होगा। जब पावर सप्लाई दिया जाएगा तो इस पिन में भी आपका आउटपुट इनपुट जो है हाई होगा। जब इनपुट हाई होगा तो चूंकि mn आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट नेमिंग कन्वेंशन है, mx बार आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो mn डायरेक्टली mn में 1 असाइन होगा, लेकिन mx में चूंकि mx कॉम्प्लीमेंट है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, mx में आपका फाइनली 0 असाइन होगा। mx 0 का मतलब हुआ कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड डिसेबल्ड हो गया, mn 1 का मतलब हो गया कि मिनिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल्ड हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पावर सप्लाई ऑफ किया जाएगा तब उस केस में क्या है, यहाँ से इस पिन नंबर 33 से इनपुट 0 जाएगा। जैसे ही 0 जाएगा तो mn इज असाइंड बाय 0 बट mx बार इज असाइंड बाय 1। mx बार का मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट, mx यानी मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड आपका ऑन हो जाएगा।
और फिर एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स आर collected by the particular processor. So external control signals are also generated by the outside from the particular processor. So that is the concept we discuss under minimum and maximum operating mode. That's why अब अगर maximum operating mode की बात होगी तो minimum operating mode के लिए तो आपका CPU responsible है. तो in minimum operating mode all control signals for memory or input output is generated by the 8086. 8086 is the name of the microprocessor. So every control signals are under concern of the microprocessor. But maximum operating mode में क्या होगा कि कुछ कंट्रोल सिग्नल्स आपका एक्सटर्नली जनरेट होगा. तो जो कंट्रोल सिग्नल एक्सटर्नली जनरेट होगा उसको एडिशनल बस कंट्रोलर का जरूरत होगा. अब ये एडिशनल बस कंट्रोलर को ही हम लोग एक्सटर्नल बस कंट्रोलर बोलते हैं. 8086 में बस कंट्रोलर जो यूज हुआ that is 8288. 8288 is the name of that bus controller which is used to accomplish the maximum operating mode task through the 8086 microprocessor. तो एक्सटर्नल बस कंट्रोलर जो है वो यूज होगा एक्सटर्नल जो आपका कंट्रोल सिग्नल्स है. अब एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स क्या हो सकता है, कोई बताएंगे? What do you mean external bus controls? एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स क्या हो सकता है? एनीवन? जैसे बाहर से कुछ लगाते हैं ना सर, मतलब कंट्रोल करने के लिए, जैसे रिमोट होता है ना टीवी में. जैसे रिमोट नहीं होता सर, अलग से होता है ना टीवी में. सर जैसे माउस. सीधे एम्बेडेड सिस्टम पर ही आ गए जी आप. उस समय रिमोट नहीं यूज होता था. एम्बेडेड सिस्टम के अलावा बताइए एनी अदर फीचर्स? I don't know sir. यस. I don't know. हाँ, I don't know sir. सर कीबोर्ड. तो यू डोंट नो बट कोई और बताइए इसके अलावा. रिमोट कंट्रोल इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. दैट इज आल्सो एक्सटर्नल कंट्रोल and there is a special circuitry available with the remote control which handles the operation, ठीक है ना, remotely. Okay sir. Also there is a controller, external bus controller, which is used to access the particular external control signals. So like your Additional peripherals are peripheral attached device. with the system and storage devices also connected with the system, and time to time there is a need of DMA सेशन. ठीक है, तो DMA सेशन जब जरूरत होगा तो उस केस में हमारा मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में अगर काम हो रहा है तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका यहाँ 2 पिन यूज होगा, होल्ड और HLDA. होल्ड इज टू रिसीव द रिक्वेस्ट बाय द प्रोसेसर एंड HLDA इज यूज्ड टू गिव द एक्नॉलेजमेंट टू द थ्रू द पर्टिकुलर प्रोसेसर. प्रोसेसर जब एक्नॉलेजमेंट देता है तो HLDA पिन आपका काम करता है, यानी बस रिसीव और बस ग्रांट. तो BR एंड BG पिन आर देयर इन द फॉर्म ऑफ होल्ड और HLDA. तो रिक्वेस्ट लेने और आपका रिक्वेस्ट जो है अप्रूवल का, दोनों का फंक्शनिंग वहां से परफॉर्म होता है. एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू आपका अगर कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, लाइक दिस कंट्रोलर, एनीथिंग, सबमिशन, एनी टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, योर डिवाइस प्रिंटर generated any types of signals, ठीक है. So that signals are carried by the particular port and that from port, that is input output interface, आपका जो है CPU collect करता है, ठीक है. और on the basis of that the particular resource is handled by the processor, ठीक है. तब now बोलिए. सॉरी सर, एक्सटर्नल बस कंट्रोल को नहीं समझ पाया. यस, सॉरी सर, एक्सटर्नल बस कंट्रोलर को नहीं समझ पाया. bus controller, it is clear. Bus controller is the controller of bus because buses Yes, are sir. used to make or establish communication between Yes, various sir. channel of the Communication system. between. Yes, sir. External Yeah, bus that's clear, controller sir. का मतलब यहाँ है the bus controller which is used to handle the external communication signals. तो external communication Communication signals का मतलब यहाँ है which is generated outside of the processor.
तो आउटसाइड ऑफ द प्रोसेसर अगर कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर। इज इट ओके? प्रोसेसर से बाहर, प्रोसेसर जो सिग्नल जनरेट कर रहा है दैट इज द इंटरनल टू द प्रोसेसर। बट अगर प्रोसेसर के अलावा कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है तो दैट इज टोटली एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर से बाहर है। तो टू मेंटेन or to acknowledge properly each and every external control signals, there is that is also maintained by bus controller. और 8086 में भी एक बस कंट्रोलर यूज हुआ 8288, जिसका काम एक्सटर्नल सिग्नल्स को मूव करने का होता था। ठीक है ना? तो अब एक्सटर्नल सिग्नल्स आपका डिफरेंट मैनर में हो सकता है, कोई पेरिफेरल्स के थ्रू, ठीक है, कोई अदर रिसोर्सेस के थ्रू। अगर कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है, अब कंट्रोल सिग्नल इन द सेंस कि अगर प्रिंटर को कोई कंट्रोल सिग्नल प्रिंटर के थ्रू जनरेट हुआ तो दैट इज नॉट इंटरनल टू द प्रोसेसर, दैट इज एक्सटर्नल टू द पर्टिकुलर प्रोसेसर। ठीक है? तो प्रोसेसर अगर कोई जनरेट कर रहा है तो वो बसेस के थ्रू वो एक्नॉलेज करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेसर से बाहर कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, फॉर डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, then it is the responsibility of external bus controller to handle that situation। ठीक है ना? अब वो सिचुएशन आपका क्या होगा, जैसे आप प्रोसेसर का काम क्या है कि जब आप ऑन कर दिए सिस्टम तो काम हो रहा है, लेकिन अगर आप सिस्टम ऑन करने के बाद डायरेक्टली सिस्टम को ऑफ कर दिया, ठीक है ना, बटन्स आपका लॉक हो गया, सिस्टम अगर ऑफ हो गया, तब उस केस में आपका कोई भी पर्टिकुलर या सिस्टम किसी तरह का कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर पाएगा? सिस्टम अगर ऑन की जगह ऑफ कर दिया आपने, इसको ऐसे समझिए कि सीक्वेंशियल सर्किट, अगर आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और आपका सिस्टम ऑफ है, तो क्या आप रिमोट कंट्रोल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपका ऑफ हो जाता है सिस्टम, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोरी, इनपुट आउटपुट या डिफरेंट सेगमेंट में अदर जो इंफॉर्मेशन है वो मूव, यानी कि मूवमेंट उसका इनिशिएट हो जाता है उसके स्टेटस के थ्रू। ठीक है? अब जैसे आपका प्रिंटर, आप बोले अभी जैसे प्रिंटर का एग्जांपल ले सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई एडिशनल आपका कोई डिवाइस अटैच है, ठीक है, लाइक योर वाईफाई राउटर, ठीक है, आपके मशीन से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में ये डायरेक्टली आपके प्रोसेसर से रिलेटेड नहीं है। अब आपको जो सिग्नल, आप वाईफाई यूज कर रहे हैं सिस्टम में, आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं सिस्टम में, ये आपका एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर है ना? समझ में आ रही बात? बोलिए। यस सर, जो बताया ना अभी वही बोलने वाले। हाँ, यही राइट है सर जो बताया अभी। एक्सटर्नल होगा तो सर वही सिस्टम से बाहर जो भी सिग्नल जनरेट होगा प्रोसेसर से बाहर, तो वो एक्सटर्नल जनरेट हाँ, तो करता है। आपको ब्लूटूथ कंट्रोलर यूज होता है कि नहीं? अभी उस समय जब 8086 बना था तो ये वाईफाई ब्लूटूथ इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। यस सर। अभी राइट नाउ हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, हॉटस्पॉट यूज करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं, ठीक है? तो ये ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब का कंट्रोलर इंडिविजुअल कंट्रोलर होगा। यस सर, तो इंडायरेक्ट सीपीयू कनेक्ट। हाँ, तो डिवाइस को कौन मैनेज करेगा? वाईफाई आपका है चैनल, वाईफाई आप सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई अगर ऑन करेंगे तो वाईफाई में जितने चैनल हैं, डिवाइस जो वाईफाई में आपको जो है नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, वाईफाई जोन है, तो उसमें से जिसका भी सर्विस आप ऐड करना चाहेंगे या जिस डिवाइस के थ्रू आप नेटवर्क एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होगा ना? यस सर। हाँ, तो ऑल आर द एक्सटर्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो हाँ, बोलिए।
जैसे लाइक एक्स्ट्रा यहाँ पॉइंट रजिस्टर सर, जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट रजिस्टर में मतलब अलग से था ना, इसमें भी वैसे ही है। यानी सर माइक्रो प्रोसेसर एक्स्ट्रा आगे उससे बाहर जितना भी कंपोनेंट एडिशनल स्टोरेज डिवाइस कुछ भी हो तो वो सर उसके लिए इनडायरेक्ट सिग्नल जनरेट करता है सीपीयू हमारा, हाँ डायरेक्ट वेव जनरेट नहीं होगा। ठीक, सही। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जब पूरा पिन मिनिमम और मैक्सिमम में किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। हाँ, तो अब यहाँ पर इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए, पिन डायग्राम, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम्स ईच ईयर, मोर और लेस एक ईयर अगर गैप हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन रहता है कि पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8086 या पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेल 8086। तो वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया दैट टोटल 40 पिन्स आर देयर, ठीक है ना? इन इंटेल 8086 40 पिन्स आर देयर। ये 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर है। अब इस 40 पिन्स में 3 तरह का पिन आपको मिलेगा। बाई डायरेक्शनल पिन, यानी कि जो पिन का डायरेक्शन दोनों साइड है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों। इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होने का रीजन क्या है कि वो पिन आपका जो है मल्टीप्लेक्स्ड मैनर में काम कर रहा है। मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब कि उस सेम पिन को 2 तरह के ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा मिनिमम रहा एंड है। मैक्सिमम बोथ, हाँ, तो जैसे लिखा गया मिनिमम यहाँ एंड पर मैक्सिमम बोथ। 0 से लेकर देखिए AD14 और AD15, यानी पिन नंबर 2 से लेकर आप देखिए पिन नंबर 16, यानी टोटल कितना पिन हो गया? 15। 15 ना सर, हाँ, 15 पिन 15, इधर 15, और एक पिन आपका सर। AD15 पिन नंबर 39, 16, यानी टोटल 16 सर। Why 16? बिकॉज देयर इज 16 डेटा बस, 16 बिट आपका डेटा बस है, और 4 और बढ़ जाएगा एड्रेस बिट के लिए, यानी एड्रेस पिन नंबर 20 35 से लेकर 38, ये आपका है A16, A17, A18, A19, यानी कि 20, एड्रेस बस टोटल 20 बिट्स का है, डेटा बस आपका 16 बिट का है। 16 तो 16 जो पिन है इसमें, आउट ऑफ 40 पिन्स 16 पिन्स आर मल्टीप्लेक्स्ड विद एड्रेस एंड डेटा बस। एड्रेस एंड डेटा बस। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि जैसे यहाँ पर MNMX बार में पावर ऑन है, पावर सप्लाई दे रहे हैं DC, तो यहाँ पर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड काम कर रहा है आपका। तो क्या ये जो बाई डायरेक्शनल पिन देख रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल पिन आपका जो है वो एड्रेस के लिए काम करता होगा या डेटा के लिए? तो एड्रेस के लिए या डेटा के लिए, ये आपका इनिशियली एड्रेस के लिए ही काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि एड्रेस बस का यूज करता है आपका प्रोसेसर जो है, एड्रेस बस के थ्रू ही कोई भी एड्रेस जनरेट, लॉजिकल एड्रेस को आउटसाइड ऑफ प्रोसेसर भेजता है, चाहे वो मेमोरी के लिए हो या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हो, ठीक है ना? तो एड्रेस बस का इस्तेमाल, यानी कि ये एड्रेस और डेटा दोनों बसेस, दोनों तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन इनिशियली फॉर एड्रेस बस। और कब ये एड्रेस बस के लिए है? क्योंकि ALE एड्रेस लैच इनेबल पिन नंबर 25 आगे डिस्कस करेंगे, ये जब तक एक्टिव हाई होता है तब तक ये एड्रेस बस का काम करता है, और जैसे ही वो लो होता है तो ये डेटा बस का काम करना शुरू करता है। अब नाउ बाई डायरेक्शनल पिन के बाद आपको 2 अलग तरह का पिन मिलेगा, एक इनवर्ट पिन और दूसरा आउटवर्ड पिन। इनवर्ट पिन जो CPU के तरफ, यानी कि जिसका डायरेक्शन CPU के तरफ होगा, इनवर्ट पिन, और जो पिन का डायरेक्शन CPU से बाहर के तरफ होगा, दैट इज ट्रीटेड एज आउटवर्ड पिन, ठीक है ना? अब यहाँ डेटा बस आपका क्लियर है कि 16 बिट का है और एड्रेस बस 20 बिट का है, इसलिए पहला 16 जो हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 से लेकर 16 और पिन नंबर 39, ये आपका टोटल 16 डेटा बस और 16 एड्रेस बस का काम यहाँ कंप्लीट होगा। उसके बाद 4 एड्रेस बस बचेगा, तो 4 एड्रेस बस स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होगा, ठीक है? तो टोटल 20 पिंस आपका कंप्लीट होता है इस तरह से आउट ऑफ 40 पिंस। तो 20 पिंस को अगर आपको देखना होगा, हाँ बोलिए सर। ये AD जो है एड्रेस बस है सर। हाँ, AD0 एड्रेस बस नहीं है, एड्रेस और डेटा दोनों है, आगे डिस्कस करेंगे। AD0 लिखने का मतलब है A0 और D0, यानी एड्रेस बस 0 इंडेक्स, डेटा बस 0 इंडेक्स। टोटल एड्रेस बस 20 है, तो A0 से लेकर A19 तक जाएगा एड्रेस बस, और डेटा बस आपका 16 है,
तो B0 से 0 से 15 सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर सर समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट समथिंग RQ साइड में जो दिया गया है ना, हाँ साइड में RQ GT ये लॉक की समझ में नहीं आ रहा। बता रहे ये पिन नंबर आपका जो है पिन नंबर 24 से लेकर पिन नंबर 31 टोटल 8 पिन्स आर यस सर। used, same pins are used for minimum as well as maximum operating mode। यानी कि ये 8 पिन जो है ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में इसका नेमिंग कन्वेंशन अलग होता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में इसका नेमिंग कन्वेंशन अलग होता है। तो जो पैरेंथेसिस में आप देख रहे हैं राइट साइड, दैट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पिन इन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड, एंड उसके पहले जो होल्ड HLDA WR कॉम्प्लीमेंट मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट आपका ये डिसेबल रहेगा जब तक कि मेमोरी इनेबल रहेगा। तो ये जितना भी पिन आपका कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है उसमें एक्टिव हाई और लो का कॉन्सेप्ट लॉजिक 1 और लॉजिक 0 से है। यानी लॉजिक 1 आपका उसको हाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या लॉजिक 0 उसको हाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर? तो हाँ बोलिए। सर ये मिनिमम और मैक्सिमम करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए है क्या, कि जब यहाँ पर अगर मैक्सिमम होता है तो ये काम में आएगा साइड वाला, और नहीं मिनिमम होता है तो ये हाँ बता रहे हैं। RQ स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट, GT स्टैंड्स फॉर ग्रांट, ठीक है ना। तो ये जो होल्ड रिक्वेस्ट पिन है HOLD, ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में इसका नेमिंग कन्वेंशन होल्ड होता है, जिसका मतलब है कि रिक्वेस्ट को होल्ड करना। यानी किसी रिक्वेस्ट को होल्ड कौन करेगा? जो बताए थे DMA कंट्रोलर में, आपको डायग्रामेटिक बताए थे ना, होल्ड और HLDA पिन। जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस दिस कंट्रोलर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA सेशन लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट देता है, तो DMA कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को CPU तक भेजता है ताकि आपका बस का जो है कंट्रोल DMA कंट्रोलर को मिल सके। तो चूंकि रिक्वेस्ट आपका डिस्क कंट्रोलर रिक्वेस्ट कर सकता है DMA कंट्रोलर को, और DMA कंट्रोलर को अप्रूवल कहां से लेना होता है? CPU से। तो जो रिक्वेस्ट उसको मिला वही रिक्वेस्ट को वो पास करता है CPU को। तो CPU को भेजने के लिए ये पिन का इस्तेमाल होता है, होल्ड रिक्वेस्ट HOLD। क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब आपका DMA सेशन ऑफ हो जाता है, डायरेक्ट मेमोरी सेक्शन आपका ऑफ हो गया, तो उस समय आपका DMA कंट्रोलर भी रिक्वेस्ट को विड्रॉ कर लेता है। तो विड्रॉ करने के लिए भी सेम पिन यूज होगा जिस पिन के थ्रू डिपॉजिट किया जाता है। यानी सबमिशन जिस पिन से होता है उसी पिन से विड्रॉल भी होता है। इज इट क्लियर? और HLDA देख रहे हैं पिन नंबर 30, इस पिन से प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट भेजता है किसको? DMA कंट्रोलर को, कि जो DMA कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट दिया उसको अप्रूव कर दिया गया और buses are now under control of DMA controller or any types of direct memory session login is possible now right now। लेकिन जैसे अब ये जिस समय इस दौरान आपका CPU क्या करता है, ये आपका जो कंट्रोल है वो थोड़ी देर के लिए DMA कंट्रोलर को हैंड ओवर करता है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DMA सेशन 8086 माइक्रोप्रोसेसर नीड टू रीगेन द कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस। So how 8086 regain the control over system buses? After withdrawing the acknowledgement। तो इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल पिन आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी से एक्नॉलेजमेंट DMA कंट्रोलर को मिलता भी है और इसी से एक्नॉलेजमेंट को विड्रॉ भी कर लेता है आपका कौन? माइक्रोप्रोसेसर। तो these two pin are important। तो होल्ड और HLDA is used in minimum operating mode, and whenever the same pin is switched to the maximum operating mode, then the naming convention will be changed here। Now the hold is actually name given to the request and grant pin। तो request and grant का पिन दोनों सेम पर्टिकुलर पिन से हो रहा है। तो request submission and then request approval। तो सेम होल्ड और HLDA पिन आपका जो है RQ-GT0 RQ-GT1, that means request and grant पिन। हाँ बोलिए।
रिक्वेस्ट और ग्रांट सर दोनों सर दोनों एड्रेस काम बस कर के बाद लेता सर है, कुछ होल्ड समझ और में नहीं आया एसएलडी है सर, जो पिन बताया था ना 16 वो सर। सर। आ रहे हैं अभी तो केवल सर, डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक एक करके ब्रेकअप किया हुआ है। यहाँ हाँ तक बस में सर किसी वो को दिक्कत 16 नहीं जो है ना, बताया बता है रहे वो हैं। समझना है। आप अभी पहले ये समझिए कि आउट ऑफ 40 पिंस 32 पिंस आर कॉमन पिन, 8 पिंस आर अनकॉमन पिन। 32 पिंस जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में काम करता है, ठीक है ना। जो मिनिमम के लिए क्राइटेरिया है वही मैक्सिमम के लिए भी है। लेकिन जो 24 नंबर से 31 नंबर पिन 8 पिन है, ये इसका नेमिंग कन्वेंशन मिनिमम और मैक्सिमम में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए बोले पैरेंथेसिस में जो रखा हुआ है वो दैट इज द नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड इन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड, और जो उससे पहले होल्ड एचएलडी ये सारा पिन जो दिया गया है ये आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में यूज किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम में ये आरक्यू और जीटी जो है कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन, ठीक है। उसी चीज को यहाँ मेंशन किया गया है। ये अब हमको लगता है कि आगे यूज होगा कहीं तो समझने में दिक्कत नहीं आएगा। एक्टिव हाई, एक्टिव लो। एक्टिव हाई मतलब लॉजिक 1, एक्टिव लो का मतलब लॉजिक 0। यानी एक्टिव हाई का मतलब जब लॉजिक 1 हो, यानी इनपुट 1 हो और वो पिन आपका जो है हाई रहे तो एक्टिव हाई है। और लॉजिक 0 का मतलब, एक्टिव लो का मतलब कि जब वो पिन का वैल्यू 0 हो और आपका जो पर्टिकुलर फंक्शनिंग आपका जो है वो ऑन हो जाए तो उसको बोलेंगे एक्टिव लो। तो जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ होगा वो सब एक्टिव लो होगा। क्यों? क्योंकि जब उससे 0 इनपुट होगा तभी वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, 0 का 1 होगा। अदरवाइज 1 अगर इनपुट होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट करके 0 हो जाएगा, मतलब डिजेबल्ड हो जाएगा। इसलिए mn mx बार में mn जब 1 होगा तो mx आपका 0 हो जाएगा, और mn जब 0 होगा तो mx बार आपका 1 हो जाएगा। एक और चीज यहाँ समझना है कि आपका जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो ये जो पिन नंबर 2 से 16 देख रहे हैं या पिन नंबर 39 देख रहे हैं, वो ड्यू टू डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। एड्रेस बस का डायरेक्शन कौन बताएंगे? रेज द हैंड। आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा सीपीयू से? एड्रेस बस आपका जो है आउटवर्ड होगा, क्योंकि एड्रेस बस और कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शनल है। तो एड्रेस बस इनवर्ड होगा या आउटवर्ड? सर बाई डायरेक्शनल होगा। एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल नहीं होगा जी, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होगा। इसीलिए इसी को तो बता रहे हैं कि ये पिन नंबर 2 से 16 और पिन नंबर 39 जो पिन है ये आपका बाई डायरेक्शनल है ड्यू टू डेटा बस। डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होता है। तो इस बाई डायरेक्शनल में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एड्रेस बस? इनवर्ड टू द माइक्रो प्रोसेसर और आउटवर्ड टू द माइक्रो प्रोसेसर। वन न्यूमन मॉडल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर एड्रेस बस आप देखे थे, सीपीयू से भी देखे थे, मेमोरी इनपुट आउटपुट सबसे देखे थे। बताइए सर आउटवर्ड टू द सीपीयू सर, आउटवर्ड सीपीयू से ऑनवर्ड सर, ऑनवर्ड होगा। सही, करेक्ट, ऑनवर्ड। हाँ सही है। यानी कि सीपीयू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस, तो सीपीयू से बाहर की तरफ वो लॉजिकल एड्रेस जाएगा और फिर वो लिमिट रजिस्टर से चेक होगा और तब जाके उसका फिजिकल एड्रेस बनेगा, मेमोरी एलोकेट होगा प्रोसेस, और तब फिर आपका कैश मेमोरी, फिर कैश मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में डिकोडिंग के लिए कोई भी पर्टिकुलर डेटा आएगा। तो वन बाय वन वी डिस्कस द पर्टिकुलर पिन। यस बोलिए सर। आउटवर्ड कैसे होगा सर? आउटवर्ड कहने का मतलब कि प्रोसेसर से बाहर की तरफ, इनवर्ट कहने का मतलब जो प्रोसेसर के तरफ डायरेक्शन, उसका एरो का डायरेक्शन प्रोसेसर के तरफ हो। आउटवर्ड मतलब प्रोसेसर से बाहर की तरफ हो। जैसे 28 नंबर पिन आपका आउटवर्ड पिन है, लेकिन 33 नंबर पिन आपका इनवर्ट पिन है, डायरेक्शन आपका इनवर्ड है, टू द माइक्रो प्रोसेसर है, और 28 नंबर पिन का आउटवर्ड है, यानी कि फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर, ठीक है ना। यहाँ आपादान से अलग हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ जुड़ाव हो रहा है, प्रोसेसर से जुड़ रहा है। तो इनवर्ड होगा जब जुड़ेगा प्रोसेसर से, प्रोसेसर को डेटा जाएगा, और यहाँ आउटवर्ड होगा जब प्रोसेसर से बाहर की तरफ डेटा या कोई भी सिग्नल जाएगा। बोलिए
जी सर, पूरे एड्रेस बस मतलब एड्रेस बस जैसे सर कोई भी इनपुट लेते हैं तो जब भी उसको प्रोसेस कर जाता है तो मतलब उसको एड्रेस देने के लिए डाटा को एड्रेस बस नहीं मतलब एड्रेस मतलब दिया जाता है, होल्ड किया जाता है डाटा को। हाँ, तो एड्रेस इसीलिए एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? एड्रेस बस एड्रेस तो बस तो इसीलिए कंटेनर होता है जी। एड्रेस यस बस एड्रेस थोड़े प्रोवाइड करता है। नो सर एड्रेस नो बस तो केवल एलोकेटर होता है, एड्रेस यस को जो सर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करने के लिए यूज किया जाता है। सर इसीलिए उसको आउटवर्ड मतलब बोला जाता है। हाँ सर हेलो। बिल्कुल। ओके सर, थैंक आउटवर्ड किसके लिए है? प्रोसेसर की बात हो रही है ना अभी। यू। यस सर। प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में आउटवर्ड है, और मेमोरी सर के डाटा कॉन्टेक्स्ट बस में क्या सर है? बाई डायरेक्शनल होगा ना सर? हाँ, मेमोरी में इन्वर्ट होगा, मेमोरी में इन्वर्ट होगा। इनपुट आउटपुट, इनपुट में क्या होगा? इन्वर्ट होगा। प्रोसेसर से बाहर जाएगा। वॉन न्यूमैन ओके सर। जब मॉडल डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट, वॉन न्यूमैन मॉडल सी डायरेक्शन। ये आपका पूरा प्रोसेसर है। प्रोसेसर इसमें देखिए, जो मशीन है, ये पूरा प्रोसेसर है जिसमें कंट्रोल यूनिट भी है, इसमें अरिथमेटिकल यूनिट भी है आपका, एएलयू है, एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, रजिस्टर है, प्रोसेसर है। नाउ सी देयर इज ए मेमोरी, देयर इज इनपुट आउटपुट। तो अब यहाँ देखिए कंट्रोल यूनिट से जो सिग्नल जा रहा है, ये कंट्रोल यूनिट से सिग्नल आपका बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, एक अंदर की तरफ आ रहा है। ये जो बाहर की तरफ जा रहा है, एक्चुअली इसमें सारे बसेस नहीं है, बट यहाँ से जो कंट्रोल जनरेट हो रहा है मेमोरी के लिए, वो क्या है? आउटवर्ड है। ये अंदर के लिए जो आ रहा है, यानी मेमोरी के लिए आपका जो है, इसके लिए आउटवर्ड है, मेमोरी के लिए क्या है? इनवर्ड है ना। तो उसी तरह से आपका जो जो भी इनवर्ड होगा, यानी कि एड्रेस आपका सीपीयू जनरेट किया और उस एड्रेस पर मेन मेमोरी वर्क करेगा, तो वो एड्रेस उसको चाहिए। अब वहां से आपका इनिशिएटिव होगा, यानी कि मेमोरी इनपुट आउटपुट के लिए एड्रेस बस आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका ऑपरेशंस होगा। सीपीयू जो है हमेशा एड्रेस आउटवर्ड ही देगा, सीपीयू में कभी भी इनवर्ड डायरेक्शन में एड्रेस बस काम नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सीपीयू को डेटा चाहिए। डेटा इन भी होगा सीपीयू में, प्रोसेसर के प्रोसेसिंग के बाद डेटा आउट भी होगा। तो डेटा बस का इस्तेमाल ये ड्यूएट बाई डायरेक्शनल करेगा, डेटा को प्रोसेस कराने के लिए, इन कराने के लिए, और फिर डेटा को आउट कराने के लिए, दोनों पर्पस को फुलफिल करेगा। हाँ बोलिए। तो सीपीयू जो है सर एड्रेस बस का ऑनवर्ड शिफ्ट ना करता है सर्वर? सर कॉलेज एड्रेस आ सकते हैं। सीपीयू सर जो है एड्रेस बस को ऑनवर्ड शिफ्ट ना करता है सर? आउटवर्ड, आउटवर्ड। अच्छा आउटवर्ड वैसे।
अब कॉलेज ऑफलाइन आ सकता है। ये कौन सा बस आ गया जी? बस नहीं, कॉलेज बस है सर। कॉलेज